Morning friends and students, welcome to my channel Thermal Engineering Local Language. We are just discussed about chapter 1 definition and basic concept. My previous video is pressure. You go to my description, there you will see the link and visit the place if you need any other information about pressure. Okay, so we just continue on the above topic, pressure. Okay, pressure, I will tell about the pressure or details in my previous video. uh, Today we just start our pressure about the continue what is. So we have studied detail about gauge pressure or vacuum pressure. Okay, gauge pressure, vacuum pressure, absolute pressure and atmospheric pressure. Okay, we know also the relation. What is the relation between absolute pressure and the gauge pressure in above the atmospheric level? Above the atmospheric level, what is the relation? If absolute pressure is equal to atmospheric pressure plus gauge pressure. Okay, absolute pressure is equal to atmospheric pressure gas pressure in above the atmospheric level. In inside the atmospheric level, what is the relation between them? The relation is absolute pressure equal to atmospheric pressure minus gauge pressure. Okay, absolute pressure minus vacuum pressure or gauge pressure. Absolute pressure is equal to atmospheric pressure minus gauge pressure is called your absolute pressure. Okay, so this is the relation between pressure in above atmospheric level or below atmospheric level. Okay, so let's start about this topic. Okay, let's start about this topic. So sometime the pressure is given at the atmospheric system. In FPS system, absolute atmospheric has been the pressure equal to 14.69 lb per inch square, or 14.7 lb per inch square in approximate static value. ठीक है, it's equivalent to MKS system, or it is equal to 1.00 FPS sorry kgf per centimeter square, that equal to kgf centimeter square 1.0032, that equal to what 14.7 is lb per inch square in FPS unit. MKS unit is equal to 1.0032 that say kgf per centimeter square is equal, or and in SI system, what is the unit? 1.01325 1.01325 बार इन SI यूनिट में बार. ओके, सो इसमें क्या होता है यार, आपका जो प्रेशर है क्या होता है, समटाइम इसका गिवन होती है कहाँ पे, एटमोस्फेरिक लेवल में. ठीक है, एटमोस्फेरिक लेवल में उसको गिवन होती है, जो मिलता है उसको एटमोस्फेरिक लेवल में मिलती है. ठीक है, दी एफपीएस जो अगर फुट पॉइंट सेकंड, फुट पंप सेकंड, ये यूनिट है, यूनिट सिस्टम, एक सिस्टम का यूनिट है. ठीक है, फुट पंप सेकंड जो है ये यूनिट में हम लोग चेक करते रहेंगे, तो जो वैल्यू आएगा प्रेशर की, क्या आएगा उसका यूनिट आएगी, वैल्यू आएगी वन प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर इक्वल टू क्या आएगी, इसका वैल्यू आएगा जो एफपीएस सिस्टम में जाएंगे तो ये आएगा 14.6965. इसका ये अप्रोक्सीमेटली 14.7. ओके, ये अप्रोक्सीमेटली 14.7 एल बी पर इंच स्क्वायर. एल बी पर इंच स्क्वायर इज यूनिट ऑफ इन एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड. फुट पाउंड सेकेंड में ये आएगा का एल बी पर इंच स्क्वायर. ओके, और अभी वैसे लेंगे इक्वल टू किसी से समान होगा, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका एम के सिस्टम में जो है हम लोग क्या है में 1.0332 1.0332 ये भी जो के जी एफ फोर सेंटीमीटर, के जी एफ फोर सेंटीमीटर इसके साथ इक्वल हो जाएगा. ठीक है, और इसका जो इक्वल होगा कितना, बार के जो ऐसा सिस्टम यूनिट जो है उसके साथ इक्वल होगा कितना, 1.0123 अगर होती है तो बार, ये बार में ऐसा यूनिट में हो जाएगा, बार हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ऐसा यूनिट बार में आएगा, और इन एम के यूनिट में के जी एफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और इन एफ पे सिस्टम में आपका एल बी पर ये आ जाएगा आपका एल बी पर 14.7 भी. ठीक है, ओके. In SI unit the pressure is expressed in Newton per meter square. SI यूनिट में क्या होता है, जो प्रेशर जो एक्सप्रेस होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बार और पास्कल. ठीक है, और बार और पास्कल रहता है. SI यूनिट में क्या होता है, इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और SI यूनिट में क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर बार भी होता है, बार और पास्कल, बार भी होता है या फिर पास्कल भी ले सकते हैं. यूनिट जो रहेगी बार और पास्कल. ठीक है, ये जो पास्कल है, 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, पास्कल 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और वन बार इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये है इस एसआई यूनिट में. तो इसके साथ जो भी है आपको 1 पास्कल एसआई यूनिट में, ये 1 पास्कल इक्वल टू
1 बार इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। जो पास्कल का जो यूनिट है देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, वन वेयर द पास्कल इज द एब्रेसिव ऑफ पास्कल, ठीक है। वेयर पी ए जो दिया गया है इसका, पास्कल जो है ये एब्रेसिव ऑफ पास्कल, ठीक है। पास्कल का एब्रेसिव है, ठीक है। The Pascal unit is very small as compared to the unit bar. Unit Pascal is very small as compared to unit bar. और केपीए किलो पास्कल, जो कि केपीए ले आता है, और मेगा पास्कल है एमपीए और मेगा पास्कल, ठीक है। मेगा पास्कल और केपीए इज इक्वल टू 1 बार। 1 बार के साम कौन सा समान होगा, वन वन किलो पास्कल या फिर 1 मेगा पास्कल, ठीक है। इसके साथ जो समान होगा 1 किलो पास्कल या फिर 1 मेगा पास्कल समान होगा केपीए और आपका का एमपीए, ठीक है। ये दोनों आपका इक्वल ही होगा यहाँ से। तो 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 बार क्या होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या होता है 10 किलो न्यूटन 10 किलो न्यूटन मीटर पर किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर रहता है, ठीक है। और 100 किलो पास्कल, इसका जो यूनिट होगा 100 किलो पास्कल। वन 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 बार इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल होती है, ठीक है। 1 बार इसकी कितना होती है 100 किलो पास्कल, ठीक है। 1 बार इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल, मतलब वही तो मेगा या फिर जो भी बता रहा है किलो एवं मेगा या फिर मेगा या फिर आपका जो किलो पास्कल जो रहता है उसका अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। 1 किलो पास्कल सॉरी 1 बार इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल होती है। कितना होती है 100 किलो, मतलब उससे 100 × 3 आपको 3 बिटवीन द वेरियस यूनिट ऑफ प्रेशर एंड मेजरमेंट्स आर गिवन बिलो। ओके, तो हम लोग चलेंगे अभी क्या क्या रिलेशन है प्रेशर का, इसका यूनिट का क्या क्या रिलेशन है, उसका मेजरमेंट कैसे रिलेशन में जाता है, कैसे मेजरमेंट होती है, उसका क्या रिलेशन रहती है, ये सब पढ़ने के लिए चलिए हम चलते हैं, ठीक है। नीचे नीचे हम लोग पढ़ेंगे अभी। अगर हम जो एम के एस यूनिट में लेते हैं, प्रेशर का एम के एस यूनिट क्या है 1 एफ पी एस। जो प्रेशर का एम के एस यूनिट है 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1 प्रेशर इज इक्वल टू कितना एफ पी एस बनता है, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 पॉइंट, अगर वो जो प्रेशर है एफ प्रेशर में है और उसका जो सॉरी जो प्रेशर है वो स्टैंडर्ड प्रेशर में है, तो स्टैंडर्ड प्रेशर में जो कितना दिखाएगा रीडिंग दिखाएगा, वो दिखाएगा 1.0332 टू एफ के जी एफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिखाएगा ना, ये रीडिंग दिखाएगा 1.0332, यही रीडिंग दिखाएगा 3 के जी एफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रीडिंग दिखाएगा आपका हम लोग का स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है। रीडिंग यही दिखाएगा, ठीक है। तो 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू, ये जो है 1 बार के साथ इक्वल है, ठीक है। ये क्या है 1 kgf सेंटीमीटर स्क्वायर जो है 1 बार के साथ इक्वल है, ठीक है। वन बार इसके साथ इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली 1 बार, अप्रोक्सीमेटली आपका जीरो जो आता है वैल्यू जो आता है 0.98 आती है, ठीक है। इसका वैल्यू 0.98 बार और दैट इज इक्वल टू 1 बार, ओके। और ये जो है आपका 14.7 एल बी एस ये भी आता है, ठीक है। 14.7 ये एल बी एस भी आता है, 14.7 एल बी एफ पर इंचेस स्क्वायर भी आती है, ठीक है। ये जो है 14 एल बी एस 14.7 आती है, और इसका इक्वल टू 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर और 0.97 एटमोस्फेरिक प्रेशर, अप्रोक्सीमेटली 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर भी आती है। इसकी क्या आती है 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर भी आती है, ठीक है। एटमोस्फेरिक प्रेशर 1 आता है, ठीक है। और इसका जो टॉर में दिया जाता है 735 टॉर, इसका यूनिट हो जाएगा 735 टॉर, ठीक है। 1 बार इक्वल टू 735 टॉर और आपका 1 kg पर मीटर स्क्वायर 735 टॉर, याद रखिए। और 1 kg पर मीटर स्क्वायर जो है ये आपका आ जाएगा कितना 14.7 एल बी एफ पी एस यूनिट में, एल बी पर इंच स्क्वायर, एल बी एफ पर इंच स्क्वायर, ठीक है। सो 1 बार जो है इक्वल टू 10⁵न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा यूनिट में जो आता है 1 बार इज इक्वल टू 10⁵न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 पास्कल इज इक्वल टू, पास्कल जो है उसका इक्वल टू क्या है 14.5038 एल बी एफ पर इंच स्क्वायर, ठीक है। ये छोटा है सबसे 1 पास्कल, और ये सबसे बड़ा है कौन सा आपका बार। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵न्यूटन मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर देखा वन वन न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 1 पास्कल होता है ना। तो 1 बार इज इक्वल टू कितना है, सॉरी 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू सॉरी और 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 पास्कल इज इक्वल टू 14.5038 13.5038 एल बी एफ पर इंच स्क्वायर, एल बी एफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू 1.01 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एम के यूनिट में 1.01 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ठीक है। 1 एल बी एफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर 14.5, वो इक्वल टू 1.35 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसका जो है 1.5 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये जो हो गया आपका
सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसके बाद होता है और 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर दैट इज इक्वल टू 0.98 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर और 750 टॉर ऑफ वाटर टॉर, 750 टॉर, 750 ऑफ टॉर और 401 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। ओके, ये एफ पी एस सिस्टम जो है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम है। एफ पी एस सिस्टम में आपका जो फोर्स का यूनिट आता है एल बी एफ आता है, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या आता है? एल बी एफ, एल बी या फिर एल बी एफ में आता है। और आप अगर आप इसमें ले रहे हैं, अगर इंच एरिया में देख रहे हैं तो इंचेस में आएगा, डिस्टेंस का रहेगी आपकी इंचेस में आती है, ठीक है। डिस्टेंस का इंचेस में आती है और फोर्स का आती है एल बी एफ में, एल बी एफ यूनिट में आ जाती है, ठीक है। तो ये 1 एल बी एफ 4 सेंटीमीटर इंच स्क्वायर, 1 एल बी एफ पर इंच स्क्वायर इक्वल टू, अगर बार में कन्वर्ट करते हैं कितना आता है? 0.06895, 0.06895 आ जाती है। कितना आती है? 0.0695, ये आ जाएगा। अगर इसको बार में पी एस सिस्टम से, अगर ये प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर का एल बी एस बाई इंच स्क्वायर आता है, ठीक है। जिसको रहता है उसका इक्वल टू बार में अगर कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है? 0 बहुत कम आती है। देखिए आप कितना वैल्यू कितना डिफर आ रही है, 0.0 आ जाती है, 0.6, मतलब बहुत लो में आ रही है इसका वैल्यू, क्योंकि बार में आ रही है, ये बहुत लो में दिखा रही है। इसलिए बार जो यूज किया जाता है सबसे बड़ी प्रेशर के लिए, हम मेजरमेंट के लिए बार का यूज होती है। अगर स्मॉल मेजरमेंट के लिए होती है तो बार का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। फिर वैसे आगे अगर इसको हम लोग एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, न्यूटन पर मीटर कितना आएगा? 6.895 आ जाएगा। कितना आएगा? और 0.06 से आ रहा था, 895 आ रहा था, इधर 6.895 आ जाएगा, 10 to the 3 आ जाएगा, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर एसआई यूनिट में जाएगा 6 पॉइंट आ जाएगा आपका, 6 पॉइंट ये जाएगा 6.895 10 to the 3 आ जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये आ जाएगा। फिर अगर हम लोग इसको एटमोस्फेरिक प्रेशर में लेते हैं, एटमोस्फेरिक कितना आएगा आपका? इसका वैल्यू भी देखिए बहुत नीचे आ रहा है, 0.06 इसका वैल्यू, 1 एफ पी एस प्रेशर, जो 1 एफ पी एस प्रेशर जो है इसका आ रहा है आपका फुट पाउंड सेकंड में। ये आ जाएगा आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर में 0.068045846, ये आ जाएगा एटमोस्फेरिक प्रेशर में। कितना है? 0.06, वही आ जाएगा 0.068 आ जा रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है। ये और ये देखिए ये सेम है, ये इक्वल ही आएगा। ऐसे बार में अगर कन्वर्ट करते हैं तो वही आएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर में भी सेम आता है, नियरली आ जाएगा, ठीक है, दोनों में। और आपका अगर एम एम मर्क्यूरी, अगर एम एम मर्क्यूरी देख रहे हैं, मर्क्यूरी का लेवल चेक कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल प्रेशर में जो आपका रहता है 760 mm तक रहती है। अगर वैसे हम लोग चेक करें तो 51 mm तक रहेगी इसमें। अगर हम लोग वन प्रेशर अगर चेक करेंगे तो ये 51 mm से दिखाएगी आपका। अगर इसमें प्रेशर लेते हैं, बहुत लो प्रेशर आपको मेजरमेंट करती है ये, जो फुट पाउंड सेकंड में आपको मेजरमेंट कर रही है प्रेशर, बहुत लो प्रेशर, देखिए 51 mm तक शो करेगी आपकी सिर्फ, जो कि अब आपका जो रीडिंग लेगी प्रेशर की रीडिंग, ये आपका जो दिखाएगी सिर्फ 51.715 दिखाएगी, 715 mm का मर्क्यूरी का लेवल दिखाएगी, ठीक है। और ये जो दिखा दी आपका। फिर अब अगर हम लोग देखेंगे तो के जी एफ एम के एस यूनिट में देखते हैं। एम के एस यूनिट में देखिए क्या दिखा रहा है आपको? 0.335 दिखा रहा है। कितना आ रहा है? ये भी नियरली वही दिखा रहा है 0.7, ये भी थोड़ा कम ही दिखा रहा है, 0.07 आ रही है, ठीक है। 0.07305 ये भी बहुत कम दिखा रही है वैसे है। अगर हम लोग एम के एस यूनिट में देखते हैं तो ये भी बहुत फर्क आ रही है। एम के एस यूनिट हो गया, ये आपका मर्क्यूरी का लेवल जो रहता है बारोमीटर का अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहता है वो दिखा दिया, ये एसआई यूनिट में देख लिया हम, और ये भी एसआई यूनिट में है बार में, ठीक है। आप चेक कर लेते हैं। और ये जो है आपका इतना आ जाएगा वैल्यू आपकी। ये इन द एम के सिस्टम, ये तो बताएगा, इन द एम के सिस्टम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड एज ए टेक्निकली एटमॉस्फेरिक कॉमनली रिटेन और in this form, okay. One technically atmospheric atmospheric pressure has been pressure equal to 1 kgf per centimeter square, right? तो इधर क्या बता रहे हैं आपको? ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये जो सिस्टम है एमके सिस्टम में, हम लोग ये जो इसको कॉमनली एक्सप्रेस करते हैं कैसे? ये एमके सिस्टम है, इधर जो एमके सिस्टम है, ठीक है, इसको हम लोग कॉमनली एक्सप्रेस करते हैं। इसका वैल्यू जो एम के सिस्टम है हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है, कॉमनली से इसको एक्सप्रेस करते हैं। कैसे करते हैं इसे? रुकिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कॉमनली एम के सिस्टम को, ठीक है। इसको लेते हैं एम के सिस्टम को, और इसको कॉमनली हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इसको प्रेशर का जो यूनिट रहता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसको टेक्निकली वे में हम लोग कॉमनली एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। एम के सिस्टम में लेके टेक्निकली वे में इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे हम टेक्निकल वे में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, ये एम के सिस्टम से, ठीक है। अगर हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर
अगर पकड़ लीजिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, ये देखिए 1 एटमॉस्फेरिक टेक्निकल प्रेशर कितना होता है आपका 1 kgf पर 1 MKS यूनिट, 1 MKS यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है, जो कि 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 1 टेक्निकली प्रेशर इक्वल टू जितना आएगा आपको 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग MKS यूनिट में लेते हैं, MKS यूनिट जो रहता है ये आपका कॉमन इक्वल रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ हमेशा, ये टेक्निकली वे में लेने के लिए रहता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कॉमनली हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लेते हैं ये टेक्निकली MKS यूनिट में हम लोग शो कराते हैं, ठीक है, ये टेक्निकली वे में चेक करते हैं, टेक्निकली वे में इसको देखने के लिए हम लोग चेक करते हैं, MKS यूनिट लेते हैं, ठीक है, टेक्निकली वे में देखने के MKS यूनिट लेते हैं, जिसके वजह से हम लोग 1 MKS यूनिट इज इक्वल टू 1 आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चलिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1 MKS यूनिट प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1 MKS यूनिट प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू आपका 1 MKS यूनिट प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इक्वल टू 1 ये आपका kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू योर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1 MKS सिस्टम प्रेशर, जो है 1 MKS सिस्टम में जो प्रेशर आएगा वही वैल्यू आएगा, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ मोनोमीटर इज यूज टू मेजर द प्रेशर, ओके, हम लोग प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, मोनोमीटर, ठीक है, मोनोमीटर का यूज किया जाता है। अगर प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं तो मोनोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए YouTube, ओके, लेट अस कंसीडर YouTube where the one arm is bigger than other, okay, one side of arm is bigger than other, okay, these arms are connected to the two gas container, these are connected to the two gas container, I will see, okay, I will see you that these arms are connected in two gas container, one gas container is P1 and other is P2, okay, so तो दोस्तों देखिए ये जो है ये आपका ये एक आप ये जो है ये आपका मोनोमीटर है, ठीक है, ये आपका मोनोमीटर है, मैं आपको मोनोमीटर बना रहा हूँ, इसमें आपका प्रेशर चेक किया जाता है, ठीक है। कैसे चेक करते हैं बता रहा हूँ आपको मैं। देखिए जो मोनोमीटर है इसमें ये जो है ये एक बॉल है, ये P1 है, इसमें ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर में आपका प्रेशर जो है P1 का प्रेशर है इसमें, ठीक है। और ये पार्ट 2 जो ये सेकंड बॉल जो दिख रही है आपको, ये आपका ये सेकंड बॉल जो है ये आपका सेकंड कंटेनर है, इसका इसमें प्रेशर है जो कि P2 प्रेशर है, ठीक है। इसमें प्रेशर जो है P2 है और इसमें जो प्रेशर है ये P1 प्रेशर है इसमें, ठीक है। जो प्रेशर भरा हुआ है ये उसका प्रेशर, जितना बजट नहीं है भैया, और इसीलिए मैंने देखिए ऐसे ही फिगर बना दिया है, आप थोड़ा मार्क कीजिएगा, मतलब ऐसा फिगर नहीं है और मैं ऐसे ही बना रखा हूँ इसे, अगर कुछ आपको समझ नहीं आता, ठीक है। इसमें देखिए अच्छा बजट होगा तो मैं आपको अच्छा से बना के दिखाऊंगा, लेकिन आप समझिए बात को मेरा, ठीक है, जस्ट समझ जाइए वही बेहतर है आपके लिए, ठीक है। आप समझ जा रहे हैं तो सही है, ठीक है। तो ये जो है ये देखिए आपका यहाँ पे आपका प्रेशर बन रही है, ठीक है, यहाँ पे आपका यहाँ पे देखिए प्रेशर बन रही है, यहाँ पे प्रेशर बन गई, ये P1 का प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ P2 का प्रेशर बन रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ तक जो दूरी होती है ये प्रेशर इसको यहाँ से प्रेशर देती है, और ये जो प्रेशर है यहाँ से आती है आपकी इधर तक आ जाती है, ठीक है। P1 से P2 तक ये जो लेंथ है देखिए लेंथ अलग अलग है, ठीक है, यहाँ से आती है, और ये जो इसमें डेंसिटी जो है आपकी ये मर्क्यूरी है, ठीक है, ये जो है आपका मर्क्यूरी एंड वाटर, इसमें आपका जो भरा हुआ है इस लिक्विड भरा हुआ है जो कि मर्क्यूरी हो सकती है या फिर वाटर, आप मर्क्यूरी भर सकते हैं या फिर वाटर भी आप भर सकते हैं, ठीक है। इसमें वाटर भी ले सकते हैं या फिर मर्क्यूरी भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए आपका यहाँ पे जो कंटेनर है वर्टिकल डिस्टेंस h, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस आपको दिखाया है दोनों में, ये जो है ये और ये जो है इसका डिस्टेंस लिया गया है और इसी का डिस्टेंस, ये दोनों का, ठीक है। दोनों के अंदर में क्या डिस्टेंस आ रही है आपको, h का डिस्टेंस आ रही है, ठीक है। द सेपरेटली टू फ्रीज लिक्विड सरफेस इज मेजर बाई ए स्केल, ये जो है एक स्केल से मेजर किया जाता है, देखिए ये स्केल है, इसमें स्केल देखा गया है, ये स्केल है, ये ली स्केल है ये, ठीक है, ये स्केल है आपको दिख रही है, ठीक है। आज थोड़ा समझ जाइए, बजट नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो आज मैं ऐसा ही फिगर बना दे रहा हूँ आपको, आप समझिए बस, समझ जाना ही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो ये जो स्केल है इसका हाइट जो है देखिए इधर h है, ठीक है, ये हाइट आपका h है, ठीक है। ये जो है सेपरेट एच टू फ्री सरफेस, ये दोनों सरफेस का जो सेपरेशन दिखा रहा है आपको, ये सरफेस से और ये सरफेस तक, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस आपको h दिखा रहा है, ठीक है, ये सरफेस से आपकी ये सरफेस तक, ठीक है, इसका डिस्टेंस जो है h, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल के हिसाब से क्या है, द प्रेशर डेंसिटी हम लोग क्या है रो लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर डेंसिटी क्या है, रो, ये जो लिए हैं यहाँ पे प्रेशर डेंसिटी जो रहेगी आपकी, हम लोग क्या लिए हैं, ये रो लिए हैं, ठीक है। प्रेशर डेंसिटी जो रो है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेंसिटी एंड द हाइट डिफरेंस क्या है, h लिए, ठीक है,
अकॉर्डिंग टू द प्रेशर डेंसिटी, अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हिसाब से क्या बोल रहे हैं, आपका रो ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी है आपकी, और ये जो हाइट है, हाइट डिफरेंस, ठीक है, डेंसिटी एंड हाइट डिफरेंस जो है ये डिफरेंस, हाइट डिफरेंस आर कनेक्टेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ इक्वेशन में फॉलोइंग करते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, ये कुछ इक्वेशन है जिसमें ये फॉलोइंग करते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका आ रहा है, प्रेशर जो रिलेशन आ रही है उसमें मनोमीटर में जो रिलेशन आ रही है, प्रेशर वन जो रहती है फर्स्ट कंटेनर का प्रेशर माइनस सेकंड कंटेनर का प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ऑफ वन माइनस प्रेशर टू कंटेनर टू इक्वल टू क्या होगा, रो जो आएगा आपका डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वाटर या फिर मर्क्यूरी कोई भी हो सकता है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो लिक्विड लिया है हम लोग जो यूट्यूब के अंदर जो लिया है, वो ट्यूब के अंदर जो लिया है उसके अंदर जो पाया लिया है मर्क्यूरी ले सकते हैं या फिर वाटर, ठीक है, उसका जो डेंसिटी है आप उसको हम लोग रो लिए हैं, ठीक है, रो इन केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब में उसे लिए हैं, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब इसका है आपका, मैं दिखा रहा हूँ केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये रो डेंसिटी जो है ये मुझे मीटर क्यूब है, ठीक है, और आपका ये जो आपका देखिए ये जो रो पर डेंसिटी जो जी पर मीटर क्यूब ये है, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जी क्या है, रो जी एच, रो जी एच जी एच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जी है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जो मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, और आपका एच इज द हाइट, इन मीटर, ठीक है, एच इज द हाइट इन मीटर, जो कि डिफरेंस ऑफ जो सरफेस डिफरेंस है, ये सरफेस डिफरेंस क्या है, सरफेस डिफरेंस ऑफ P1 प्रेशर डिवाइड बाई P2 प्रेशर, ठीक है, ये सरफेस डिफरेंस है, सरफेस डिफरेंस दोनों सरफेस डिफरेंस आ रहा है, जो वाटर लेवल जो भी मर्क्यूरी लेवल का जो लिक्विड लेवल का डिफरेंस है, जो स्ट्रोक के अंदर जो डिफरेंस रहेगा ऊपर नीचे रहेगी, उसी डिफरेंस को हम लोग एच लेते हैं, ठीक है, उस हाइट को लेंगे हम लोग, उसके अंदर डिफरेंस जो रहेगी उस हाइट को हम लोग एच लेंगे, ठीक है, ये जो ये हाइट है आपका एच आ जाएगा, ठीक है, ये हाइट आपका एच आ जाएगा, ठीक है, और ये जो है आपका मर्क्यूरी एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, और ये आपका डेंसिटी ऑफ द वाटर और मर्क्यूरी को भी जो भी है, मर्क्यूरी या फिर वाटर जो भी है ट्यूब के अंदर जो है उसके होगा, मर्क्यूरी ले सकते हैं या फिर वाटर ले सकते हैं, ठीक है, तो ये जो आ गया आपका क्या आ गया, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया, और P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा इसका प्रेशर का, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड जी इज द एक्सलेशन ग्रेविटी और एच इज द हाइट, ओके। थैंक यू, अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके, और ये आपका ये मेरा प्रेशर का